योगः कर्मसु कौशलम्. Good afternoon, everyone. I am Jayesh Malar, an assistant professor of English at Government Arts, Commerce, Science College, Umarpara. On behalf of HRDC, Gujarat University, Ahmedabad, I welcome you all. I feel honored to introduce and welcome today's expert speaker, resource person, and a great personality, Dr. Dushyant Nimawat, sir. Humanity, the quality of being kind and understanding. Our most of the subjects comes in this border field of humanities. As I know, Dushyant Nimawat sir, beside a knowledgeable person, he is also a good human being. Whenever I meet him, he is greeting me generously. Thank you, sir. Before starting today's session, I would like to give a brief background of Dushyant sir. Dr. Dushyant Nimawat sir is an associate professor with the Department of English, Gujarat University, Ahmedabad. He has contributed 14 books, 22 book chapters, and 48 research papers in reputed international journals. He is interested in areas like diaspora studies, cultural studies, translation studies, and comparative literature. He is a member of Council for Indian Association for Canadian Studies (IACS). He is Joint Secretary for Gujarat Region for Ecosophical Foundation for the Study of Literature and Environment. He is a member of the editorial board for 27 international journals. He has 2 patents registered along with the team of English teachers of Gujarat. He has received 3 national and 2 international awards for his contribution to research and teaching. He is a member of the Board of Studies for 3 state university and 3 private university of Gujarat. He has delivered more than 70 invited lectures at various nationally reputed institutions. He has successfully guided many students for PhD and MPhil. Today, he will give us a talk on translation, a skill or an art, opportunity in the translation field. Without any further ado, I hand over today's session to Dr. Dushyant Nimawat, sir. Sir, please. Thank you very much, Mr. Jayesh, for your kind words. Ultimately, the identity of a teacher in front of the teacher is that we belong to the same fraternity. मुझे मालूम है कि यहाँ पे इंग्लिश के अलावा अलग अलग भाषाओं के टीचर्स हैं, लेकिन मेरी एक शायद आप कम नसीबी समझें कि मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है. पहले तो आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं. आई विल ट्राई टू मिंगल इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. दोनों मेरी पीपीटी ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही होगी, लेकिन मैं हिंदी ट्राई करूंगा जितनी मुझे आती है. जो मैंने हिंदी सीखी है वो प्राइमरी तक सीखी है और बाद में बॉलीवुड ने मुझे सिखाई है. तो जितनी हिंदी आती है उतनी मैं यूज़ करना चाहूँगा और मेरा जो टॉपिक है उसमें जो भी मेरे विचार है वो आपके साथ रखना चाहता हूँ, तो वो रख पाऊँ ऐसा मुझे लगता है कि मुझे उतनी तो हिंदी आती है. Let us start. Right? In fact, that you can say our topic only. Let me share first of all my PPT. So today's topic is translation, a skill or an art, and opportunities in the translation field. आप सबको मालूम है कि सोशल मीडिया पे आप फेसबुक और अदर सोशल मीडिया अगर यूज करते हैं तो उसमें आपको मालूम है कि मशीन ट्रांसलेशन होता है. फेसबुक में है, आपने देखा होगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन हम ऐसा समझते हैं कि बहुत इजी जॉब है. ट्रांसलेशन करना एक आप मान सकते हैं कि नहीं, वो काफ़ी सरल है. शब्द जो हम एक लैंग्वेज में यूज़ किए हुए उसको अगर भाषांतर कर सकते हैं
और दूसरी लैंग्वेज में रखते हैं तो ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे मैंने ये सोशल मीडिया से ही कैसे ट्रांसलेशन, फनी ट्रांसलेशन होते हैं। व्हाट्सएप, राइट, मीनिंग आपको मालूम है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है वो ऊपर क्या है, which is totally wrong, that you also know. That WhatsApp, ultimately it is sort of hi or how are you, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन सोशल मीडिया पे मशीन ट्रांसलेशन है, इसलिए इसमें ऐसा हुआ कि ऊपर क्या है, आर यू नट्स, राइट, तो क्या तुम मूंगफली हो, राइट, अल्टीमेटली दिस इज वेरी फनी, आर यू नट्स, राइट, सो आर यू इन ए वे मैड, बट उसका जो ट्रांसलेशन हुआ वो कंप्लीटली गलत, अलग प्रकार से हुआ, नट्स का उन्होंने मूंगफली कर दिया। तो ऐसे कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ये I wish to start my lecture on a lighter tone. इसमें आपको दिख रहा होगा, ये मैंने YouTube से ही एक जो सीन है उसमें लिया हुआ है। आपको मालूम है कि अब मूवीज है उसका भी नीचे ट्रांसलेशन, क्योंकि अलग एक जो ट्रांसलेशन का, we are going to discuss that as well, कि ट्रांसलेशन क्यों किया जाता है, कि दूसरे कल्चर है उसमें, हमारा सपोज बॉलीवुड का मूवी है, so our movies can be viewed by other foreign citizens as well, other foreign people as well, and they can understand, and therefore, right, you see these captions going on, running along with the scenes. लेकिन यहाँ पे जो एक दृश्य आपको दिखता है उसमें एक्चुअली डायलॉग ये है कि हमाम में सब नंगे, राइट, और ट्रांसलेशन उसका जो दिया हुआ है वो है लिसन एवरीवन इज नेकेड इन दिस बाथ, राइट। ऊपर का जो हमाम में सब नंगे है उसका हमें लिटरल मीनिंग नहीं लेना, उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो शब्द शब्द हमें नहीं करना, लेकिन यहाँ पे ऐसा किया है और उसका मतलब दूसरा ही होता है। ये उससे भी फनी है, एक सॉन्ग है, बहने दे मुझे बह देने, राइट, सो अल्टीमेटली बहने, बहने मीन्स फ्लो, राइट, प्रवाह की बात है, और उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है सिस्टर्स, गिव मी योर सिस्टर्स, बहने दे मुझे बहने दे, राइट, उसका ट्रांसलेशन उन्होंने गिव सिस्टर्स, गिव मी योर सिस्टर्स ऐसा किया हुआ है। अगेन अनदर ट्रांसलेशन, बहुत जाना माना सॉन्ग है, दीदी तेरा देवर दीवाना, आए राम कुड़ियों को डाले दाना, उसका जो ट्रांसलेशन उन्होंने किया है वो है सिस्टर योर ब्रदर इन लॉ इज फैनेटिक, ओ लॉर्ड थ्रो सीड्स फॉर गर्ल्स। नाउ कुड़ियों को डाले दाना, उसका आप अगर शब्द से मीनिंग करेंगे तो वो गलत होगा, उसका जो मतलब है वो अलग है, उसका जो आपको जो सोचना पड़ेगा वो है कि अंडरलाइन मीनिंग क्या होगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिटरल मीनिंग किया हुआ है। और ये आपको देखें, दूसरा एक सॉन्ग है बीड़ी जले, राइट, जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, गुलजार ने लिखा हुआ है, आपको मालूम होगा। डियर, राइट, लाइटन योर सिगरेट विथ योर लीवर, जिगर का उन्होंने यहाँ पे लिटरल जो ट्रांसलेशन किया उसका उन्होंने लीवर कर दिया, योर लीवर हैज सो मच फायर, सो अल्टीमेटली दिस इज टोटली इनकरेक्ट ट्रांसलेशन। नाउ यू नीड टू गेस दिस, ये एक सॉन्ग है, दिस इज अ सॉन्ग एंड यू थिंक अबाउट व्हिच सॉन्ग इज इट, राइट, इफ यू नो द आंसर प्लीज टेल मी। इट्स डूइंग धक धक, माय हार्ट इज गेटिंग scared, my love, right, leave my arm, don't pluck raw flower buds, right? Which song is it? Hello, am I audible or not? You are audible. Yes. Yes. So which song is it? धक धक करने लगा। हाँ, धक धक करने लगा, right, right, धक धक करने लगा। You see the difference, right? Don't pluck raw flower birds,
कच्ची कलियां तोड़ने, right? Ultimately meaning is something very different, right? And here the translation completely is meaningless. Then corners, again you guess this one, corner spinning wheels turn, corner spinning wheels turn, your only friendships under dwarf berries. Which song? Again, this is written by Gulzar. Yes, which song? Some words I think you will be able to guess. This is the song, Chapa Chapa Charkha Chale. Right? So ultimately, when you translate, ultimately you need to understand that it is not an easy job. उतना सरल नहीं है जितना दिखता है, और इसलिए ट्रांसलेशन की हमें बात करनी चाहिए, खास करके जो भाषा के शिक्षक हैं उन्हें ट्रांसलेशन की बात करनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि आपने भी पढ़ा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें ट्रांसलेशन के ऊपर खास करके काफी चीजें दी गई हुई है। गवर्नमेंट भी ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा है, और आपको मालूम है कि ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन है ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन की, वो उसकी कमेटी भी बन गई है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। अल्टीमेटली व्हाट इज ट्रांसलेशन? An incredibly broadened notion which can be understood in many different ways. For example, one may talk of translation as a process or a product. So first of all, this is a question. क्या है ये ट्रांसलेशन है, प्रोसेस है या प्रोडक्ट? राइट। और दूसरी बात जो है कि लिटरेरी ट्रांसलेशन है, टेक्निकल ट्रांसलेशन है, सबटाइटल जो हमने अभी देखे, और मशीन ट्रांसलेशन जो आपको सोशल मीडिया की जो बात हुई उसमें मशीन ट्रांसलेशन की बात है, क्योंकि मशीन है वो ट्रांसलेट करता है, इसलिए वो भाषा में जो आपको मालूम है कि हर एक भाषा है उसकी एक विशेषता होती है, खास करके इंग्लिश और हमारी जो भारतीय भाषा है उसमें काफी अंतर है। इंग्लिश है उसमें जो वर्ड ऑर्डर हम बोलते हैं कि कौन सा कैसे आना चाहिए वो फिक्स्ड है, इंग्लिश में फिक्स्ड है। उसमें कर्ता, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। सो पहले कर्ता आता है, बाद में क्रियापद आता है, बाद में कर्म आता है। और हमारी जो भारतीय भाषा है उसमें अलग होता है। तो मशीन है उसको वो समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको ऐसे जो मैंने एग्जांपल दिए वो आपको दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि किसी ने गुजराती में एक पोस्ट लिखी हुई है, उसका इंग्लिश जो दिख रहा है वो कंप्लीटली इनकरेक्ट इंग्लिश है। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रामर, मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा, मैं जो एक भाषा में जो अर्थ की अर्थपूर्णता की बात आती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कितना मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। और इसलिए हमें ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों की बात करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जब ट्रांसलेशन की बात हम करते हैं तो आपको दिखता है कि वो रिटन काफी होता है, लिखित ज्यादा होता है, लेकिन उसके साथ इंटरप्रिटेशन जो ओरली होता है, आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है, वहां पे कोई चाइनीज बोल रहा है तो वो चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में, मैंड्रिन लैंग्वेज में बोलेगा, लेकिन उसका ट्रांसलेशन है वो सबको सुनाई देता है, तो इंग्लिश में होगा, अलग अलग भाषाओं में होगा, तो वो इंटरप्रेटर्स कहलाते हैं। तो अलग अलग जो बातें हैं वो, of course the word I think all of you must be knowing it, Latin word है trans means across और letus means past participle of to carry means carried, right? So you carry something across। एक जो कल्चर की हम बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, उसमें से दूसरी भाषा में हम जब लाते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड होके कैसा होता है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। आय रिचर्ड्स है
टुवर्ड्स थियरी ऑफ ट्रांसलेशन है, उसमें उन्होंने कहा वी हैव हियर इंडीड व्हाट वी मे may very probably be the most complex type of event yet produced in the evolution of the cosmos in relation to translation, theory of translation that he has talked about. Definition अगर आप यूजिन नीडा है, क्योंकि ट्रांसलेशन की बात करें और यूजिन नीडा की हम बात ना करें, खास करके थियरी की जो बात है, और इंग्लिश में तो काफ़ी ट्रांसलेशन के बारे में आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो उसमें डेफिनेशन उन्होंने दी है, ये है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द मीनिंग ऑफ अटरेंसेस इन वन लैंग्वेज टू अनदर. सो वी नीड टू identify the meaning of the words used in this definition. जो यहाँ पे definition है उसमें जो words है, key words है, उसके अर्थ क्या है वो समझने पड़ेगा. पहली बात तो उन्होंने कही कि प्रोसेस है. कौन सी प्रोसेस है? तो ट्रांसफरिंग ऑफ मीनिंग, राइट. तो एक अर्थ जो एक भाषा में होता है उसका दूसरी भाषा में आपको ट्रांसफर करना है, वो प्रोसेस जो होती है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं. लेकिन यहाँ पे जो शब्द है मीनिंग, वो बहुत महत्वपूर्ण है. हमने आगे जो शायद थोड़ा फनी लगे ऐसे वे में हमने लाइटर टोन में लिया हुआ, लेकिन आपको देखना होगा कि मीनिंग है वो काफी महत्वपूर्ण है और वो होना चाहिए. अगे एंड्रू चेस्टरमैन मीन्स ऑफ ट्रांसलेशन, उसमें उन्होंने कहा है कि ट्रांसलेशन गोज फ्रॉम समवेयर टू समवेयर. सो इट मीन्स ट्रांसलेशन एक भाषा है, वो समवेयर है, मीन्स कहीं पे तो है. कहीं पे के मतलब ये भी है कि उसके साथ कल्चर आता है, उसकी संस्कृति भी आती है. अगर वो गुजराती है तो गुजराती के साथ उसकी संस्कृति आती है, और अगर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है तो इंग्लिश के साथ इंग्लिश की जो संस्कृति है उसकी भी आती है. तो समवेयर टू समवेयर, इट इज नॉट समवेयर टू नोवेयर, राइट. लेकिन ट्रांसलेशन अगर गलत हो गया तो समवेयर टू नोवेयर हो जाएगा, वो एंड्रू चेस्टरटन मानते हैं. ट्रांसलेशन की कैटेगरीज है. रोमन जैकबसन है, उन्होंने 1959 में दी है. वो पहले कहते हैं कि इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, उसका मतलब है ट्रांसलेशन प्रॉपर, वो कहते हैं सपोज इंग्लिश टू हिंदी. तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जो कहना चाहते हैं वही आप कह पाए, वो अगर आप बोलते हैं तो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कहते हैं. देन इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन मींस रीवर्डिंग. जानते हैं इटालियन है, पुराने जमाने में उन्होंने लिखा, अगर मॉडर्न इटालियन है उसमें उसको डालना है तो काफी चेंजेस आते हैं. शब्द भी अलग अलग होता है. इंग्लिश में चौसर है, उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा हुआ है. पहला शब्द जो प्रीफेस टू कैंटरबरी टेल्स है उसमें आता है वो WHAN, तब उसका स्पेलिंग WHAN होता है था. अब मॉडर्न इंग्लिश में हम WHEN कहते हैं. Similarly, you can have an example of Shakespeare also. So Shakespeare wrote during 16th century suppose. तो अगर मॉडर्न इंग्लिश में हम रेंडर उसको करना चाहते हैं तो है तो इंग्लिश में ही, लेकिन उसको मॉडर्न इंग्लिश के तरीके से ताकि हम समझ सके, बिकॉज वी ऑल यूज मॉडर्न इंग्लिश, वी डोंट नो. क्योंकि पुरानी इंग्लिश है उसमें खास करके कविता है, जो इंग्लिश के प्राध्यापक है उनको तो मालूम है. तो ऐसा THY दाय वो शब्द प्रयोजन होता था. तो THY का अब मॉडर्न इंग्लिश में अगर हम रीवर्डिंग करना चाहें, उसको हम इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, एक ही भाषा का उसी भाषा में ट्रांसलेशन अगर हम करना चाहें तो THY दाय का मतलब यू हो जाएगा. So that is
intralingual translation, which is also done across, especially in literature. It has its own validity. And then intersemiotic translation, transmutation, film adaptation of book. सपोज हैरी पॉटर बुक है, बाद में उससे मूवी बनी, तो उसका जो डायलॉग उसके बुक में जो है वही डायलॉग आप देखते हैं कि स्क्रीन पे आप देखना चाहते हैं, तो माध्यम बदल गया। माध्यम बदलने से उसमें जो चेंजेस आएंगे उसको आप इंटरसिम्बियोटिक ट्रांसलेशन बोल सकते हैं। तो आप जो समझते हैं कि ट्रांसलेशन माने लिखित कुछ है, उसका जो ट्रांसलेशन है वैसा नहीं है, अलग अलग प्रकार के ट्रांसलेशन भी है। वो रोमन जैकबसन ने उसकी कैटेगरीज दी। मंडे है, उसने 2001 में जो एक बुक लिखी थी उसमें उन्होंने बोला है कि द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग is long established but the discipline of translation studies is new। अगर आप देखते हैं कि ट्रांसलेशन होता था पुराने जमाने में, तो यस होता था, लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा कि शेक्सपियर है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि शेक्सपियर है, उन्होंने काफी लैटिन जो स्टोरीज थी उसमें से अपना रॉ मटेरियल है वो लिया। तो आप समझ सकते हैं कि उसको शायद लैटिन ना भी आई होती, उसको ना, राइट, he doesn't suppose know it, but then from Latin there might have been some translation done, right, in English, and that he might have read। but discipline की अगर हम बात करें कि नहीं, अब ट्रांसलेशन है वो पढ़ाया जा सकता है, कोई पढ़ सकता है, उसकी भी एक थियरी हो सकती है, वो डिसिप्लिन है, वो नहीं, वो हमने मॉडर्न एज में ही ट्रांसलेशन की बात हम कर रहे हैं। ट्रांसलेशन, राइट, इफ यू कंसीडर, इट हैज ऑलरेडी ऑलवेज बीन कंसीडर्ड इंफीरियर टू क्रिएटिव राइटिंग। ट्रांसलेशन है उसका हमने सेकेंडरी ही उसको रखा है। वी ऑलवेज फील दैट नो, इट इज derivative is from one language to another, it is transferred, and it means it has a low status in comparison to creative। अगर एक कवि है, वो कविता लिखता है और उसका ट्रांसलेशन कोई करता है, तो उसको ट्रांसलेशन जो करने वाले हैं उसका महत्व उतना नहीं रहता है जितना कवि का रहता है, ओरिजिनल जिसने लिखा है। तो उसको ऐसा ही हमने एक डिसिप्लिन या बोले कि नहीं ट्रांसलेशन का वैल्यू होना चाहिए, तो हमने इंफीरियर ही रखा उसको। सो ट्रांसलेशन फॉर्म्ड पार्ट ऑफ अदर डिसिप्लिन्स आल्सो, लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। सपोज आपने देखा है उसमें भी ट्रांसलेशन की कई बातें आती है। कंपैरेटिव लिटरेचर की हम बात करें, उसमें भी काफी ट्रांसलेशन आता है, क्योंकि कंपैरेटिव लिटरेचर में हम एक जो साहित्य की कृति है उसको दूसरी कोई साहित्य कृति है उसके साथ, सपोज इंग्लिश की है वो गुजराती या हिंदी के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरेटिव लिटरेचर में भी ट्रांसलेशन का काफी महत्व है। कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस अगर हम बात करें, क्रिटिसिज्म की बात करें, तो एक भाषा की जो कृति है उसको दूसरी कृति के भाषा की कृति के साथ हम अगर कॉन्ट्रास्ट उसका विरोधाभास हम स्टडी करें तो वो भी हो सकता है। और अप्लाइड लिंग्विस्टिक में तो ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन की काफी बातें होती हैं। तो अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, जो डिसिप्लिन एस्टैब्लिश हुआ, तो उसके साथ अलग अलग कई स्वरूप भी आए और अलग अलग और विभिन्न, आप बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ स्टडी है उसमें भी उसकी बात हुई। Now, how do you perceive translation? Is it a skill or an art? Translation in the Indian context has a very different connotation than the other parts of the world. क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसलेशन अलग तरीके से क्यों लिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ दो शब्द भारत में यूज हुए हैं, रूपांतर और अनुवाद। जबकि वेस्ट में और यूएस की हम बात करें तो ट्रांसलेशन का मीनिंग वही है कि जहां ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसका फेथफुल आप ट्रांसफर करें दूसरी भाषा में, एक भाषा से ए भाषा है उसका बी भाषा में अगर आप कर सकते हैं, सोर्स की भाषा आप बोलते हैं और टारगेट लैंग्वेज आप बोलते हैं, तो
उसका जो फेथफुल ट्रांसफर टेक्स्ट का होता है उसको आप ट्रांसलेशन बोलते हैं। ऐसा वेस्ट और यूएस में माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ रूपांतर और अनुवाद दो शब्द है जिसका महत्व काफी है। Literal adaptation of the language to be translated happens here, and what comes out of it is transcreation and not translation, right? So अगर आप literally means शब्दशः आप लेते हैं एक शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा और ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ट्रांसक्रिएशन कहलाता है, ट्रांसलेशन नहीं। क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो शब्द है उसके साथ उसका जो संस्कृति की बात आती है, उसका कल्चर की जो बात आती है वो शायद ट्रांसफरेबल ना हो, और ट्रांसफरेबल है तो उसमें भी आपको कोशिश करनी पड़ती है, वो शब्द नहीं आता है। आप सभी भाषा के टीचर से आपने कहीं पे वो फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। Perhaps this difference lies in our oral tradition of transfer of knowledge. क्यों ये आया? क्योंकि हमारे यहाँ मौखिक जो ज्ञान की एक परंपरा थी, उसको जो सपोज संस्कृत थी तो संस्कृत का हिंदी में अगर रूपांतर करके संस्कृत के श्लोक का जो एसेंस है, मीनिंग है, उसको जो कन्वे करने की बात आई तो वो रूपांतर हुआ। अनुवाद इज समथिंग वेरी डिफरेंट। अनुवाद है उसमें उसके कल्चर की बात आएगी और उसके जो कल्चरल सेट ऑफ रूल्स है उसकी भी बात आएगी। मोरओवर इन इंडिया पीपल मोस्टली एसोसिएट ट्रांसलेशन विथ लिटरेचर ओनली। ये शायद हम उसको काफी लिमिट करते हैं, उसको मर्यादित कर देते हैं कि नहीं, उसका लिटरेचर के साथ, साहित्य के साथ ही संबंध है, ट्रांसलेशन दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आपको मालूम है अभी बिजनेस की बात करते हैं उसमें भी ट्रांसलेशन का महत्व है, right? But reality is of course very far different from it. The scope of this vocation is much higher in non-literary assignments also. That is why I chose this topic कि हम सोचते हैं कि उसका साहित्य के साथ ही अनुबंध है। Translation is nothing but a job of either a teacher or a student, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षक या स्टूडेंट जो साहित्य पढ़ता है वो ही ट्रांसलेशन की बात करे। Translation comes across, right, all other fields as well. I'm going to discuss that, so I'm not going deep into it. For example, translating a book on Java programming. Java programming, you know, ultimately it is about computer and the language or the platform for computer that you create. Now, from English to Gujarati is non-literary, where there is a little scope left for transcreation. अगर आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं, उसमें ट्रांसक्रिएशन की बात करते हैं, तो जावा प्रोग्रामिंग की एक बुक है जिसमें टर्मिनोलॉजी है, उसमें टर्म्स यूज की है, उसके शब्द जो है जो कंप्यूटर की भाषा में जो यूज करते हैं वो शब्द आते हैं, तो वो लिमिटेड हो गया। तो उसका आप नॉन लिटरेरी, पहले तो वो साहित्यिक है ही नहीं, उसका साहित्य का भाषांतर कर ही नहीं सकते और इसलिए वो ट्रांसक्रिएशन नहीं कहलाएगा। On the other hand, translating the Ramayana, ancient Hindu text, suppose in Portuguese, that is a literary translation where the translator has lots of scopes to prove and testify his or her creativity. अगर रामायण की अब बात करें जो एक टेक्स्ट है, साहित्य की बात करें, क्योंकि रामायण साहित्य की ही बात है, तो अगर वो पोर्टुगीज में ट्रांसलेट करनी है तो वो एक लिटरेरी ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेटर है उसके लिए काफी दिक्कत भी आएगी, उसको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक कल्चर की दूसरे कल्चर में, भारत की बात है, वो पोर्टुगल में जस्टिफाई हो ऐसा आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। And this literary connotation only helps us clarify or classify translation is an art or a skill, right? Is it an art or a skill that we can do or we can understand, we can infer only from this if we understand these two differences. It can be referred to as art when it is done in the context of literature. तो हमारा जो प्रश्न है वो यही रहता है, इज इट एन आर्ट? क्या कला है ट्रांसलेशन? तो हाँ, कला है। कब? जब हम साहित्य की बात करते हैं,
क्योंकि वहां पे आपको कलात्मक भाषांतर करना पड़ेगा। जो मैंने पहले बात की कि संस्कृति की बात है, भाषा है, उसका एक इतिहास है, वो भी आपको समझना पड़ेगा, वो साथ में लेके आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि साहित्य की एक कृति है, उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो उसके साथ जो उसका कंटेक्स्ट आएगा, उसका संदर्भ आएगा, वो एक आर्ट ही कहलाएगा। बिकॉज एज ए ट्रांसलेटर यू आर सपोज टू एड सो मेनी कलर्स टू योर ट्रांसलेशन, creativity to your translation, whereas it becomes a skill when putting to use for non-literary functions, because such translations require an individual to undergo customized training and technological integration. लेकिन वो स्किल कब बनती है? जब हम असाहित्यिक या नॉन लिटरेरी फंक्शन के लिए जब ट्रांसलेशन का उपयोग करते हैं तब होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रेनिंग चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होता है, उसमें ऐसी टर्मिनोलॉजी, उसके शब्द विशेष प्रयोग होते हैं जो पर्टिकुलर कोई फील्ड होता है उसका, वो भी उसमें यूज किया जाता है। इसलिए उसकी ट्रेनिंग भी जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। और ऊपर की हम बात करते हैं लिटरेचर की, तो वहां आर्ट की बात आती है। इसलिए ऑफ कोर्स इट इज बोथ an art or right and a skill also, depending on the usage of it. I'm skipping this thing now. What I wish to do, मुझे जो बात करनी है वो यही है कि why not translation be taken as a profession. पहले तो मैंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, आपने अगर वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि उसमें पहली बार ऐसी बात हुई है कि अभी तक ऐसे कई फील्ड्स थे, जैसे कि लॉ है, कानून है, तो उसकी पढ़ाई जब करते हैं तो काफी इंग्लिश वर्ड्स आते हैं, और अभी तक उसके जो रिसोर्सेज थे, उसकी पुस्तकें थी, संदर्भ पुस्तक की हम बात कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश में ही अवेलेबल। वैसे ही मैनेजमेंट है, वैसे ही टेक्नोलॉजी है, वैसे ही साइंस है। ये सब फील्ड जो मैंने अभी बोले, सब में जो हम कोई रेफरेंस बुक अगर यूज करना चाहते हैं तो वो एसेंशियली इंग्लिश में ही, तो उसको ट्रांसलेट करके अब अवेलेबल बनाना है हमारी प्रादेशिक भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में भी उसको अवेलेबल बनाना। तो वो कौन करेगा? ऑफ कोर्स टीचर्स लाइक अस हु आर बाइलिंगुअल, हु नो 2 लैंग्वेजेस। मैं हूं तो मैं गुजराती हूं, तो मुझे गुजराती तो आती है, और इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इंग्लिश आती है। तो 2 जो भाषाएं हैं वो मुझे आती है, तो मैं इंग्लिश से गुजराती हो या गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता। और हमारे यहाँ तो तीसरी भी भाषा हमें, वी आर ऑल ट्राइलिंगुअल, क्योंकि हमारे यहाँ बॉलीवुड है, उसका प्रभाव काफी है, तो हमें हिंदी सीखनी नहीं पड़ती है। हाँ, उसमें ये चीज है कि अगर हमने बम्बईया हिंदी वाले जिसमें बोली जाती है ऐसी काफी फिल्म्स देखी है, तो हमें वैसी हिंदी आएगी, लेकिन हिंदी तो आती है। तो वी आर ट्राइलिंगुअल्स, हमें 3 भाषाएं आती है, हमारी रीजनल लैंग्वेज जो है वो भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और हमें हिंदी भी आती है। सो मेनी ऑफ अस आर ऑफ दैट सॉर्ट। सो अल्टीमेटली व्हाई कांट ट्रांसलेशन बी टेकन एज ए प्रोफेशन? क्योंकि हमारी ही जरूरत पड़ेगी, हमारे जैसे टीचर्स की ही जरूरत पड़ेगी जो ऐसा काम कर सकते हैं, जो जानते हैं कि ट्रांसलेशन कैसा करते हैं। Ultimately, in 20th century, if you look at previously, if you know, बाइबल है, उसका ट्रांसलेशन हुआ, तो रिलीजियसली उसका ट्रांसलेशन करना पड़ा आपको। वो भी अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आपको मालूम होगा, वरना आपका स्टडी थोड़ा है तो वो भी मालूम होगा कि हिब्रू लैंग्वेज में बाइबल पहले अवेलेबल था, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1664।
फर्स्ट ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल है वो पब्लिश हुआ। तब जाके इंग्लैंड में पता चला लोगों को कि बाइबल में अभी तक जो पादरी थे जो हमें बोल रहे थे वो सही में लिखा हुआ है कि नहीं। वो पहली बार वेरीफाई कर सके कि नहीं ये है बाइबल में लिखा और ये पादरी जो है प्रीस्ट है वो ऐसा बोल रहे हैं। तो पहली बार वेरीफाई कर सके। कब कर सके? जब ट्रांसलेशन हुआ। लेकिन सेकंड हाफ है 20th सेंचुरी का, उसमें आपने देखा कि मास एक्टिविटी बन गया। क्यों? क्योंकि उससे पैसे भी, पहले जो था वो बाइबल की हम बात करते हैं वो ट्रांसलेशन था, तो वो शौक की बात करते हैं कि नहीं भाई मुझे ट्रांसलेट करना है। आपको मालूम होगा कि बाइबल के ट्रांसलेशन करते समय काफी लोगों को मारना पड़ा, क्योंकि रिलीजन की बात, रिलीजन ऐसा मानता था कि नहीं उसका ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो तो आपको भी पता है। यदि अगर ट्रांसलेशन हो गया तो हम जो चर्च में बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बाइबल में कहा गया है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो बाइबल पढ़ सकता है। तो इसलिए ऐसा हुआ, काफी लोगों को मारा गया और तब जाके ट्रांसलेशन अवेलेबल हमें हुआ। लेकिन तो वो शौक था कि नहीं भाई मुझे करना, या पैशन था नहीं भाई ट्रांसलेशन करना, उसके पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी आई थिंक वी कैन से दैट वी एस्टैब्लिश्ड ट्रांसलेशन एज अ प्रोफेशन दैट यू कैन अर्न ए लिविंग आउट ऑफ इट। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी और इवन पार्लियामेंट में भी ट्रांसलेटर्स का के जॉब अवेलेबल है। उनको ट्रांसलेशन करने की के लिए पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, and it's a reputed job. You can understand, suppose if you are a translator with Supreme Court, it's a, you can say central government job, right? So it's a profession. लेकिन वो कब आया? सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। वो मॉडर्न कंसेप्ट, वो पहले नहीं था। पहले तो शौक है तो कर लेते हैं ट्रांसलेशन, लेकिन उसका मुझे कुछ मिलेगा नहीं। आज अगर मुझे 2 भाषाएं आती है तो उसके हिसाब से मैं कुछ कमा सकता। सो इट हैज बिकम ए प्रोफेशन नाउ, एंड आई बिलीव कि हमें खास करके जो शिक्षक है जो भाषाएं सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, ये प्रोत्साहित करना चाहिए कि ट्रांसलेशन भी एक ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स में आए, भाषा सीखने आए तो आपको हाई स्कूल में टीचर बनना है बीएड करके, या आप आगे जाना चाहते हैं तो आप पीएचडी करें या नेट दे और टीचर ही बने। There are other jobs available. इंटरप्रेटर है, ट्रांसलेटर है, ये भाषा की ही बात है, लेकिन हम ये सिखाते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो ट्रांसलेशन became a subject in training. ट्रेनिंग की बात आए तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन स्किल बन गया। वो आर्ट पहले था, अभी भी है, लेकिन स्किल कब बना? सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। So many translators and interpreters, right? They in fact took the training, and therefore institutions were established where they were specially trained, right, for translation. Theoretical training became necessary. जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उन्होंने अगर ट्रांसलेशन पढ़ा है तो उनको मालूम है फ्रेंच स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन है, अमेरिकन स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन है, हमारी बोल सकते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन भी है। तो उसकी जो थियरीज है कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, उसमें कैसे कैसे वो कंसेप्ट्स आते हैं, किसी थियरीज है वो उसमें पढ़ाई जाती है। सो प्रैक्टिस वाज नॉट इनफ, इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस है वो सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हुए और काम भी उन्होंने अच्छा किया। खास करके फ्रांस की बात करें और यूएसए की बात करें तो काफी इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जिन्होंने पुरानी जो कृतियां थी उसका ट्रांसलेशन किया और काफी बड़े पैमाने पे वो ट्रांसलेशन अवेलेबल करवाया। डिजिटली भी अवेलेबल है आज। तो अलग अलग वो बात हम देखते हैं कि एक प्रोफेशन की तरह वो उभर कर आया। सो व्हाट इज
the scope of translation as a career in the Indian job market. अगर हम भारत की बात करें तो जॉब मार्केट में हम लेने जाए तो ट्रांसलेशन अगर मुझे आता है तो अपॉर्चुनिटीज क्या है? With the growth of knowledge-based activities, the Indian job market has massive scope for translators. Lot of translation works are available. I'm not boasting, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि इलेक्शन की जो ड्यूटी आती है तो आखिरी जो 4 इलेक्शंस हुए हैं उसमें गुजरात यूनिवर्सिटी से मुझे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से कलेक्टर जो ऑफिस होती है उसमें ट्रांसलेटर के बतौर मुझे जाना होता है और डायरेक्ट जो मेरा कनेक्शन और एसोसिएशन रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ पे हमें गुजरात से जो भी मैसेजेस पास करवाने हैं, खास करके इलेक्शन कमीशन है तो उनके रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, जो हर रोज जो एक पेज का जो रिपोर्ट होता है वो भेजना होता है कलेक्टर ऑफिस से कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं, अगर कुछ हुआ है तो उसका भी रिपोर्टिंग करना पड़ता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में बैठे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं उनको गुजराती नहीं आती, तो जो मैसेज जो उनको पास ऑन करना होता है वो गुजराती में लिखा हुआ होता है, उसको मुझे ट्रांसलेट करके आगे भेजना होता है। तो ऐसे कलेक्टर ऑफिस है उसमें मेरे संपर्क हुए और बाद में ऐसा हुआ कि इलेक्शन के सिवा भी काफी ट्रांसलेशन की उनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ उनका व्यवहार होता है तो उनको इंग्लिश में ही वो चीजें भेजनी होती है। इट इज नॉट ओनली अबाउट इलेक्शन बट अवेयरनेस कैंपेन्स जब करते हैं कि वोटिंग करें तो उसमें भी जो मटेरियल यूज करते हैं उसमें भी बुकलेट्स होती है, ब्रोशर्स होते हैं, तो उसके लिए भी ट्रांसलेशन करना जरूरी होता है। तो उन्होंने ट्रांसलेटर ऑफ कोर्स दे वांटेड टू पे, तो मैंने क्या किया, मैंने कलेक्टर से यहाँ बात की कि भाई खास करके आपको ऐसी जरूरत बाद में भी पड़ती है और आप बोलते हैं कि पेमेंट, मैं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पेमेंट बट व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोवाइड यू द ट्रांसलेटर, क्योंकि हमारे यहाँ एमए और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास मुझे लगता है कि नहीं ये ट्रांसलेटर अच्छा है, ये स्टूडेंट है उसको ट्रांसलेशन अच्छा आता है, तो हम एमओयू करते हैं। तो हमने एमओयू किया है, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश गुजरात यूनिवर्सिटी हैज डन एन एमओयू विथ द कलेक्टर of Ahmedabad that whatever material is to be translated from Gujarati into English, that will be done by the students of Department of English Gujarati University. तो इससे क्या हुआ है, और काफी बार तो इतना मटेरियल आता है, जस्ट रिसेंटली ओनली क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो जो वोटर्स अवेयरनेस के लिए जो वो बुकलेट बनाते हैं तो 100 पेजेस की वो बुकलेट थी जो वो सभी डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट करना चाहते हैं। तो 100 पेजेस की जो एक बुकलेट है उसका कंप्लीटली उन्हें ट्रांसलेशन करवाना है। सो दैट हैज बीन गिवन टू, एंड फॉर ईच पेज, राइट, ईच पेज, एक पेज जो है A4 साइज का, उसके लिए 150 रुपीज विल बी पेड to the student who does it। आप समझ सकते हैं कि 100 पेजेस है और जो ट्रांसलेशन उसका करेगा तो उसको 150 पेजेस के मुताबिक, राइट, उसको मिलेगा। देयर आर पिक्चर्स आल्सो, सो इट इज नॉट सो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो एडवर्टाइजिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए एक बुकलेट बनाई गई है, तो काफी पिक्चर्स है उसमें, फोटोग्राफ्स है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, तो उतनी टेक्स्ट है नहीं जितना उसको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। This is an, that you can say, earning. This should be, so translation should be taken like this. So it can be taken, of course, right, as a profession. Now, IT की हम बात करें
काफी आपने देखा है वेबसाइट बनानी है, गुजराती उनको आती है कंपनी को, लेकिन उनको वेबसाइट बनानी है इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि फॉरेन मार्केट है, उसको भी आकर्षित करना है। तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो ट्रांसलेट कर सके। गुजराती में मटेरियल वो देंगे, उसका ट्रांसलेशन वो करेंगे। थोड़े समय पहले सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है उसमें कांटेक्ट किया था। एम आई ऑडिबल और नॉट? Hello? जी जी Am I? Yes, fine. You can understand that online lecture, right, is sometimes because I cannot see you, so I'm not very sure whether you are able to listen to me or not. Fine, thank you. So SMC है, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने भी थोड़े समय पहले एक काम के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी का कांटेक्ट किया था। तो कॉफी टेबल बुक बनानी थी जिसमें भी काफी पिक्चर्स थे। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनको अपनी जो योजनाएं हैं अलग अलग, उनको हाईलाइट करना था वो कॉफी टेबल बुक में। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रपोजल भेजा, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसके लिए गुजरात यूनिवर्सिटी को 1 लाख रुपए है एक बुक जो बनाने थे उसके लिए मिले। तो व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि मटेरियल जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां के एसएमसी के, उन्होंने गुजराती में भेजा, उसका यहाँ से ट्रांसलेशन हुआ, उसका कंप्लीट बुकलेट फॉर्म में, कॉफी टेबल बुक राइट फॉर्मेट में एक वो उसको बनाया गया और बाद में उनको भेजा गया। And the university earned 1 lakh rupees. Of course, we gave it to the students as well, who contributed to that project. What I am saying is not that मैंने ये किया, हमने वो किया। वो जो बात मैं कर रहा हूँ कि एक प्रोफेशन की तरह, एक जॉब की तरह उसको ले सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को भी एक ये सिखा सकते हैं कि नहीं, ट्रांसलेशन है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। हम उनको, अगर आपको आती है तो आप को सिखा सकते हैं कि नहीं भाई तू ऐसे प्रैक्टिस करो, और एक प्रोफेशन की तरह राइट आप उसको लो तो आपको मार्केट में उससे अर्निंग भी हो जाएगी। Do some languages enjoy special status in comparison to others in the business world? If yes, which are those? अगर, क्योंकि यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाता, अलग पार्टिसिपेंट भी मुझे मालूम है कि इंग्लिश के हैं, लेकिन उसके साथ गुजराती के भी है, हिंदी के भी है, अलग भाषाओं के भी है। और हमारा ये इंडियन माइंडसेट भी है कि हम भाषाओं को कंपेयर करते हैं, करना नहीं चाहिए। लेकिन मार्केट है उसमें, उसके मुताबिक अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि थोड़ी भाषाएं है वो उसको स्पेशल स्टेटस मिलता है, काफी महत्व उसका है और दूसरा का नहीं है। ऐसा होता है। और क्यों होता है? तो यस, ऐसा होता है क्योंकि मार्केट में आपको ऐसा मिलेगा कि जहां पे जिस भाषा का व्यवहार ज्यादा हो, अगर वो आपको आती हो तो उसके लिए आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं। एवरेज ट्रांसलेटर गेट्स पेड ₹5,000 INR for translating a 400-word document from English to French, whereas for translating a document of the same word limit from English to Hindi, the same person would get only between ₹100 to ₹200. I got this data right from an institution located in New Delhi, who is working even for PMO के लिए भी जो इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर का काम करते हैं, उन्होंने ये डेटा दिया हुआ है कि एवरेज जो ट्रांसलेटर है 400 वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसमें इंग्लिश में से आपको फ्रेंच में ट्रांसलेशन करना है। आप समझ सकते हैं कि दो अलग भाषाएं हैं, भारत की भाषाएं नहीं है, और उसको ट्रांसलेशन करना है तो क्या है, तो 400 वर्ड का ही डॉक्यूमेंट है, उसके लिए आपको 5,000 रुपये मिल जाएगा।
सेम डॉक्यूमेंट है, वर्ड लिमिट उतनी है, 400 वर्ड 400 वर्ड्स की है, और आपको इंग्लिश में, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज बोली जाती है, उसको प्रादेशिक भाषा मानी हिंदी में करना है, तो क्या मिलेगा आपको? 100 से 200 रुपये। क्यों है ये? क्योंकि ये बिजनेस वर्ल्ड, मार्केट, जो भाषा का महत्व ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके लिए आपको, उसके ट्रांसलेशन के लिए ज्यादा आपको मिलेगा। डज इट मीन दैट वन लैंग्वेज इज सुपीरियर टू अनदर? नो। इसका मतलब यह है कि एक भाषा दूसरी भाषा से प्रभुत्व उसका ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाषा सेम ही है, आपको जो आती है उसमें जो ट्रांसलेशन होता है उसके लिए आपको जो है वो मिलेगा। मार्केट सबके लिए अवेलेबल है, रेट्स अलग अलग, वो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। मुझे इंग्लिश आता है लेकिन फ्रेंच नहीं आती, तो मैं इंग्लिश से गुजराती कर सकता हूँ, इंग्लिश से हिंदी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे यही पैसे मिलेंगे क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती है, इंग्लिश भले आती है। अगर इंग्लिश और फ्रेंच मुझे दोनों आती है तो मुझे ज्यादा मिलेगा। As simple as that. Huge gap between the demand for translators in the Indian market and its supply reasons. Right? So, demand और सप्लाई की जो हम बात करते हैं, वो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं? ट्रांसलेटर वर्सेस अपॉर्चुनिटीज और मार्केट। ऑफ कोर्स यू नो दैट भारत में काफी भाषाएं हैं, विविध भाषाएं हैं, सो वी आर मल्टीलैंग्वेज कंट्री। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर बाइलिंगुअल्स, 2 भाषाएं हमें आती है। अगर आप गुजराती जानते हैं तो आपको हिंदी भी आती है, इंग्लिश वाले ना आती हो। वी आर इवन right, self-sufficient in managing the demand and supply in terms of bilingual involved in Rupantar or Anuvad. But when we as a professional activity, we are lagging behind. अगर प्रोफेशनली हम बात करते हैं कि उसको लेना चाहिए, तो हम उतना आगे नहीं जा सके क्योंकि हमने कभी ट्रांसलेशन एक प्रोफेशन now in comparison to the opportunities ahead, our human resource supply is negligible irrespective of our fleet of bilingual or multilingual. In some cases, अगर हम बोलते हैं कि हम multilingual, हम bilingual, तो 2 भाषा आती है या 2 से ज्यादा भाषाएं आती है, लेकिन अगर उसका ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना हम चाहते हैं तो वो सब ऐसा नहीं। मतलब कि आपको आपकी नजर कभी प्रोफेशन पर नहीं पड़ी, मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, उससे कर सकता ट्रांसलेशन बट लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा ही कि ट्रांसलेशन एक जॉब भी हो सकता है, प्रोफेशन भी, और उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वरना हम पढ़ाते हैं अलग कुछ, साहित्य पढ़ाते हैं, भाषा पढ़ाते हैं और ट्रांसलेशन अपने आप आ जाएगा, ऐसा तो है। लेकिन हमें ट्रांसलेशन भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, और आपको ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? We don't go deep into translation, we simply teach them some theories and on surface we make them practice. अगर आपको एक प्रोफेशन की तरह उनको लेना है और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उसको ऐसे ले, तो आपको एक ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। At the learning stage, the complexity of certain languages at times forces an individual to develop disinterest in what he or she does. कई बार ऐसा होता है जब हम सीखते हैं, काफी जटिल चीजें भाषा की आती है, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि इसमें तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं आता है। Just concentrate a little and the mist soon starts fading away. If you concentrate on 2 languages, how they work, then whatever
complexities that you have will be, right, will go away, will fade away, and soon you will be very clear. But once one starts working, the biggest challenge is that of rejection. Ensure that you have all the traits of a good translator. That's one. And ultimately, it means command over two languages. What are these traits? Because when we talk about the characteristic or the traits of a good translator, and these are the traits. Command over language. Now, language consists of grammar, structures, tenses, and not many other things. हम जब बोलते हैं कि भाषा है उसके ऊपर प्रभुत्व होना चाहिए, तो भाषा क्या है? उसका व्याकरण है, उसकी एक रचना है, टेंसेस है। ये सब हमको पहले सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और हम अब क्लियर है तभी जाके वो कर सके। नो ओमिशंस। जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा है उसमें ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तब कई ऐसी चीजें आती है जो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। उसका इक्विवेलेंट वर्ड है वो हमें नहीं आता है, और डिक्शनरी में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि अवेलेबल नहीं है। तो मतलब यह है कि वो वर्ड ही हम निकाल लें? नहीं, देयर आर वेज। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ सपोज एक भाषा है, हमारी भारतीय भाषा है, उसमें एक शब्द है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें काफी सारे सेंटेंसेस है उसको यूज करने पड़ेंगे। तो ओमिट तो नहीं कर सकते, उसको ओमिट करेंगे तो अच्छा ट्रांसलेशन नहीं कहलाएगा। नो मिस ट्रांसलेशन। मिस ट्रांसलेशन हमने आगे पहले ही मैंने लेक्चर के शुरू में ही कई एग्जांपल्स दिए, वो मिस ट्रांसलेशन है, वो भी नहीं होना चाहिए, वरना वो आप अच्छे ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। नो स्पेलिंग एरर्स। ऑफ कोर्स इफ आई राइट फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश में ह्रस्व दीर्घ नहीं है, लेकिन अगर गुजराती में मैं लिखा हूं तो उसके लिए मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है उसमें भी मीनिंग चेंजेस। दीन है तो ह्रस्व है या दीर्घ है, उसमें आपको मालूम है दीन का मतलब चेंज हो जाता है, तो वो मुझे समझना चाहिए। तो इसलिए ट्रांसलेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस है उसके ऊपर ऐसा ही सिमिलर बैलेंस्ड कमांड हो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इंग्लिश आती है तो गुजराती शायद लिखना, और अभी तो क्या होता है कि हम ज्यादातर टाइप ही करते हैं, लिखते हैं। तो गुजराती आप अगर जो टीचर्स है इंग्लिश के वो सर्वे करते हैं हम, अगर कि वे हमारे यहाँ 10 टीचर्स है, वो गुजराती में कब आके लिखा, तो कई बार ऐसा होता है कि बोलते कि नहीं मैंने तो गुजराती में लिखा ही नहीं, तो स्पेलिंग एरर्स वो आएंगे, वो नहीं आनी चाहिए। तो उसके ऐसी भाषा हमें आनी चाहिए जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें भी इन्हीं हम जस्टिफाई कर सकें। एक्यूरेट चॉइस ऑफ वर्ड्स, रादर प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स। एक भाषा में दूसरी भाषा में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो एक्यूरेट वर्ड आया कि नहीं, उसका पूरा जो हार्द है मीनिंग का वो आया कि नहीं, और मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। कई बार आपने ट्रांसलेशन में ऐसा देखा होगा कि शुरू में आपको ट्रांसलेशन अच्छा लगे, बाद में आपको लगा कि वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दे, एक्यूरेसी नहीं दिखाई दे। तो these traits, right, these characteristics should be maintained. Importance of languages. Why translation? Because ultimately we'll have to go back to the importance of languages. Understand what others are saying. हम अगर सोचते हैं कि नहीं भाई what क्या लोग अलग भाषा में बोलते हैं तो मुझे जाना, तो ट्रांसलेशन वहां काम आएगा। क्रिएशन ऑफ गुड इंप्रेशन, फॉर दैट यू नो दैट इंटरप्रिटेशन की हम बात करते हैं तो मिनिस्टर्स मिलते हैं अलग अलग देश के,
So it is about, of course, creating a good impression of one's own country. Convey what you want. वहां भी पॉलिटिकल की ही अगर बात करें तो आपको 2 मिनिस्टर्स मिलते हैं, तो अल्टीमेटली दे वांट सम रिलेशनशिप टू गेट एस्टैब्लिश्ड. तो कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो इसलिए वो करना चाहते हैं. लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेस. समझ सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ हमारे तो संबंध आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, नहीं हमें चर्चा करनी है, हम बातें करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिल्डअप. अल्टीमेटली why language is important? Because it builds confidence and it builds trust. It creates trust among people. Why foreign languages? Because there is foreign trade. Why English, French, Spanish important as far as translation is concerned? Because ultimately when you talk about foreign trade, विदेशी धंधे की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो वहां पे इफेक्टिव आपको कम्युनिकेशन करना है, तो नेचुरली दिस शुड बी देयर. देन लिबरलाइजेशन ऑफ ओपन इकोनॉमी की आपको बात, ग्लोबलाइजेशन की बात आपको मालूम है. आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट. रिसर्च खास करके जो मॉडर्न कंसेप्ट है, कंटेम्पररी जो आप बात करते हैं, तो रिसर्च ऐसा एक शब्द है जो एक दूसरे को आपने कोविड में ही देखा है कि वेस्ट में कई देश है, वहां पे वैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च किया तो रिसर्च पेपर्स लिखे. अब समझ सकते हैं कि यहाँ एक डॉक्टर है जो समझना चाहता है, जो गुजराती है, उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, वो समझना चाहता है कि भाई कोविड क्या है और कौन सी दवाई है वो अच्छी रहती है ट्रीटमेंट के लिए, कैसे ट्रीटमेंट करनी चाहिए, आइसोलेशन की बात आई, राइट. तो अगर वो समझना है तो वो रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा. वो रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए इधर द पर्सन शुड नो इंग्लिश. अगर वो व्यक्ति को इंग्लिश आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको नहीं आता है तो उसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी कि भाई तुम मुझे समझाओ कि इसमें क्या लिखा हो. तो रिसर्च हैज एनकरेज्ड मोर ट्रांसलेशन, क्योंकि उसके साथ एनालिटिकल एबिलिटी भी जुड़ी हुई. नाउ these are some data that is available. Of course it is from internet that I have taken. Bilingual means जो लोग 2 भाषाएं जानते हैं, उसमें जब हमारी पॉपुलेशन की जो हम बोलते हैं सेंसस वो हुआ है, तब जनगणना हम बोलते हैं हिंदी में, राइट, वो हुआ है, तब ये भी पाया गया है कि समय के साथ 2 भाषाएं जिन लोगों को आती है उसका नंबर बढ़ता गया, परसेंटेज बढ़ता गया. आप देखिए 61 में 9.70 ही थी, लेकिन 21 में 21.72%. तो समय के साथ ऐसे लोग कई हैं जिनको 2 भाषाएं आती है. इंग्लिश सपोज हैज बिकम वेरी कॉमन. नाउ इट इज नॉट ओनली सो. भारत की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश थोड़े लोगों को ही आती है, कई लोगों को आती है. Other than academic also, some important results, right? In that sense, if you look at 21.72 are bilinguals, 7.22 are trilinguals. As I told you, 3 भाषा. सपोज मेरी बात करें, इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनकी बात करें तो उनको इंग्लिश भी आती है, अगर वो गुजराती है तो उनको गुजराती भी आती है, और बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं इसलिए उनको हिंदी भी आती है. So they are all trilinguals. So we have surpassed that also. कि बाइलिंगुअल की बात नहीं, अब तो ट्राइलिंगुअल की बात करें. और कई ऐसे लोग हैं जिनको कई सारी भाषाएं आती हैं.
significantly among major language speakers the spread of bilingualism in English is more than in Hindi, of course, right? तो हम देखते हैं कि जो मेजर लैंग्वेज स्पीकर्स है उनकी हम बात करें तो बाइलिंगुअलिज्म में हम देखते हैं कि इंग्लिश है वो हिंदी से ज्यादा, अगर साउथ की बात करें तमिल आती है, तेलुगु आती है, लेकिन बाद में उनको इंग्लिश आती है, उनको शायद हिंदी ना भी आए। तो हमने जो ये ऑफ कोर्स इट इज फ्रॉम डेटा, इट इज नॉट manipulate data, it is government data, that how many languages do you know, they ask the question and this is the data. 8% as second language, इंग्लिश अगर मुझे आती है तो मैं पहले तो गुजराती हूँ, तो मैंने पहले तो गुजराती बोलता था, बाद में मैंने इंग्लिश सीखी, सो आई एम सेकंड लैंग्वेज लर्नर ऑफ इंग्लिश। तो ऐसे कई लोग हैं जो 8% है। थर्ड लैंग्वेज जो सीखते हैं बाद की बात करते हैं तो 3.15% और हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो 6.15% और 2.16% है। यूनेस्को है, उसमें भी भारत के बारे में उन्होंने बोला है, इट इज वर्थ मेंशनिंग द एनकरेजिंग रिपोर्ट्स बाय यूनेस्को दैट हैज अप्रिशिएटेड इंडिया स्टैंड ऑन मेंटेनिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। यूनो है, उसने भी अप्रिशिएट किया है, हमारी प्रशंसा की है कि भारत है उसने ये जो विविधता है भाषा की उसको मेंटेन करके रखा है। About half of the approximately 6,000 languages spoken in the world are under threat, seriously endangered or dying. It does appreciate that India has maintained its extensive and well-catalogued linguistic diversity. पूरी दुनिया में 6,000 जो भाषाएं बोली जाती है उसमें से हाफ है वो एंडेंजर्ड है, वो शायद ऐसा है कि थोड़े समय के बाद मृतप्राय हो जाए, लेकिन भारत है उसने जो अलग विविधता है जो है भाषा की वो वेल कैटलॉग मीन्स डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है और उसके बचाव के लिए जो भी करना पड़ता है वो भारत सरकार कर रही है। Now, if you look at this data, then you will find अलग अलग भाषा है, काफी ऐसी भाषाएं हैं जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो 2025 तक की ये आपको डेटा मिल जाएगा जिसमें प्रिडिक्शन किया हुआ है, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। 70% ऑफ कोर्स चाइनीज पीपल की बात करें तो उनका परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 7.8% है, वो टोटल पॉपुलेशन में से इंग्लिश उनको आती है, और हिंदी की बात करते हैं तो 6.3। 2025 तक ये शिकागो का जो एक ब्रिटानिका वर्ल्ड डेटा उन्होंने निकाला हुआ है उसमें उन्होंने दिया हुआ है। ऑनलाइन, क्योंकि अब इंटरनेट यूज करते हैं, ऑनलाइन लैंग्वेज भी काफी है, उसका वो आप बोल सकते हैं कि भाषा है उसका प्रसारण भी मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू काफी हो रहा है। तो अगर हम ये देखते हैं तो मार्च 2002 का ये डेटा है। ऑनलाइन लैंग्वेज पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हो इंग्लिश काफी यूज हो, इसलिए आपको ऐसा मिल जाएगा। अगर आपको कुछ सर्च करना है इंग्लिश में तो आपको कई वेबसाइट्स मिल जाएगी। अगर आपको हिंदी में अगर और गुजराती में अगर मराठी में आपको देखना है तो आपको वेबसाइट्स कम मिलेगी जिसमें आपको जो इंफॉर्मेशन है वो चाहिए। क्यों? क्योंकि 40% जितना और इसमें बढ़ावा भी होगा, ये तो ओल्ड डेटा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी की बात करें तो एयरलाइंस में ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, बीपीओज की बात करें उसमें भी पड़ती है, एम्बसीज में कोई बात उनको भी 2 भाषाएं आनी चाहिए, ऐसा उनका रूल है। पब्लिशिंग हाउसेज में उनको भी चाहिए। मैंने बोला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि भाई इंग्लिश में जो अवेलेबल है उसको टेक्नोलॉजी अगर पढ़ाना है तो उसको गुजराती में भी या हिंदी में भी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा।
तो पब्लिकेशन हाउसेस है उनको ऐसे ट्रांसलेटर्स की अवेलेबिलिटी करवानी पड़ेगी। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज है, कंटेंट राइटिंग है, रिसर्च सेंटर्स है, मीडिया और आर्ट्स है, फिल्म प्रेस। आपने देखा कि वो कैप्शन भी लिखने होते हैं, तो मीडिया है, आर्ट है। फिल्म्स में आपने देखे हैं कि डायलॉग्स है, उसका ट्रांसक्रिप्शन लिखना है, तो सभी चीज़ें के लिए उनको ट्रांसलेशन करने पड़ते हैं। टीचिंग में ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन की बात तो आती ही है। सॉफ्टवेयर कंपनी से उनको चाहिए, मैनेजमेंट पे चाहिए, तो आप अलग टूरिज्म में खास करके इंटरप्रेटर्स की हम बात करते हैं तो उनको चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज इंटरप्रिटेशन की हम बात करें तो डिलीवरी स्टाइल उसमें काफी महत्व रखता है। ये ट्रांसलेशन लिखित नहीं है, वो बोल के आपको करना है, लेकिन ट्रांसलेशन तो है ही वो। और आप समझ सकते हैं कि जब लिखित होता है तब उसके ग्रामेटिकल रूल्स और सब लागू होता है, लेकिन जब बोलचाल की हम भाषा की बात करते हैं शायद आप ग्रामर ना फॉलो करें, लेकिन कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, वो कम्युनिकेट होना चाहिए, वो समझ में सामने वाले को आना चाहिए। उसके लिए वो इंटरप्रिटेशन जब करते हैं तो डिलीवरी स्टाइल काफी बेटर करता है। साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग मींस एक बोलता है तो तुरंत ही आपको वो ट्रांसलेट करके बोलना पड़ता है। कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग, एक बोलता है, दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है, तो वैसे भी आपको करना पड़ता है। एरियाज अलग अलग हो सकते हैं। कोर्ट इंटरप्रेटिंग होता है, कम्युनिटी इंटरप्रेटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस इंटरप्रेटिंग होता है, टेलीफोन इंटरप्रेटिंग होता है, और विस्परिंग, धीरे से बोलते हैं लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं, मिनिस्टर है बाजू में बैठे, इंटरप्रेटर धीरे से बोलते हैं, सामने वाले मिनिस्टर है उनको बोलना है कि ये कहना चाहते हैं, तो उसमें विस्परिंग वो बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है। जब ये हमने देखा है इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो लिटरेरी ट्रांसलेशन है, सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन की हम बात करते हैं, कॉमर्शियल ट्रांसलेशन की बात करते हैं, लीगल ट्रांसलेशन की बात करते हैं, टेक्निकल ट्रांसलेशन है, जुडिशियल लॉ की बात करते हैं तो उसमें भी ट्रांसलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन है। आपको मालूम ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इंग्लिश को रखा है, तो वहाँ ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। मेडिकल ट्रांसलेशन की जरूरत है। स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन, आप देखते हैं कि एक बुक लिखी गई है वो इंग्लिश में है, उसका हिंदी रूपांतरण करके नाटक करना है या कोई मूवी बनानी है, तो उसमें क्या करना है, मल्टीमीडिया लोकलाइजेशन करना पड़ता है, फाइनेंशियल ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो ये अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज है। वाई फोकस ऑन ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन है बहुत सोशली और कल्चरल चेंज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे मेजर चेंज आ सकते हैं, जिससे हम ऐसा सोर्स है जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन उसके लिए काफी महत्व है। रोल ऑफ ट्रांसलेशन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, सब कल्चर्स है, सब आइडेंटिटीज है, तो हमारे यहाँ इतनी भाषा है तो उसमें एक या दूसरी तरह से हमें ट्रांसलेशन का ही मदद लेनी पड़ेगी, जहाँ से हम ज्ञान या माहिती है वो दे सकते हैं। Then is it a science, art or skill? Science in the sense that it necessitates complete knowledge of the structure. Structure जो उसका भाषा कैसी, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी रचना कैसी है, वो नॉलेज की बात जब हम करते हैं तो उसके लिए तो it is a science, you know that, right? When you talk about linguistic, then linguistic is nothing but ultimately it is science how the language works. Right, so ultimately that structure comes into that, so ultimately it is science. आप आर्ट की बात करते हैं तो अल्टीमेटली एक भाषा से दूसरी भाषा है, उसमें कैसे क्रिएटिवली उसको रखते हैं, वो जो आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं उसमें आर्ट आता है। उसमें आप कैसे प्रेजेंट करते हैं रीडर को, वो आपको बनाता है कि आप आर्ट कैसे ऐड करते हैं उसमें। स्किल की हमने बात की कि कैसे वो ट्रांसलेशन है करके उसको, उससे पैसा भी कमाया जा सकता है और दूसरे जो स्किल्स है उसको भी एनहांस किया जा सकता है। दिस वाज अ स्मॉल, यू कैन से काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू आवर स्टूडेंट्स हियर, पास्ट प्रेजेंट। मैंने सोचा कि अगर ये करना है, लेक्चर देना है, तो मैं
पूछ सकता हूँ स्टूडेंट को कि साइंस है, क्योंकि हमारे यहाँ एक पेपर है जो ट्रांसलेशन स्टडीज का वो पढ़ाया जाता है, तो मैंने सोचा कि हमारे स्टूडेंट से और इवन टीचर्स ऑल्सो एट कॉलेज लेवल, सो व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट। सो 854 रिस्पोंडेंट्स है, उन्होंने ये एक रिसर्च पेपर यहाँ हमारे JRF स्टूडेंट है उसने लिखा था, तो इसके अंतर्गत हमने एक ये सर्वे किया था। तो कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि 72.1% है, वो सोचते हैं कि भाई ये दोनों है, साइंस है और स्किल भी। दूसरे लोग जो 90% है वो सोचते हैं कि नहीं एक स्किल ही है। आर्ट, ये दिस इज सरप्राइजिंग, लोग सोचते हैं कि वो आर्ट नहीं है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि बहुत सीमित ट्रांसलेशन का उपयोग है वो एकेडमिया में होता है। अगर आप ट्रांसलेशन थियरी पढ़ाते हैं लेकिन आप ट्रांसलेशन प्रैक्टिकली करते नहीं, आप ट्रांसलेटर नहीं, तो कैसा होगा कि आपने ट्रांसलेशन किया लेकिन वो आपने सोचा नहीं कि वो आर्ट हो सकता है, इसलिए ऐसा हो। कई लोगों ने ऐसा कहा कि आई डोंट नो, और कई लोग ऐसे बोले कि नहीं भाई वो साइंस भी नहीं है, वो स्किल भी नहीं है। ट्रांसलेशन का जो महत्व है वो मैंने बोल दिया पहले। why to focus, that also I spoke about. This is localization of the market that you can say. इतनी एट पब्लिकेशन में इतने ट्रांसलेशन का 5वां नंबर है, आप देख लीजिए। रेवेन्यू की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं कि कितने पैसे आते हैं ट्रांसलेशन की जॉब में। दिस इज द ओवरऑल बल्क ऑफ द ट्रांसलेशन जॉब इन रेवेन्यू। तो आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू में काफी राइट उसका महत्व है। Need to get connected, right? If you are a translator, if you are interested in translation at local level, you need to get connected how the language works locally, and global level of course you need to understand that. आपको मालूम होगा कि जो लास्ट बुकर प्राइज है वो भी एक जो हिंदी लेखिका है उनको ही मिला, और वो ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ इसलिए उसको बुकर प्राइज मिला। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है। ऑफ कोर्स पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि ट्रांसलेशन अवेलेबल किया इसलिए उसको कोई नोबेल प्राइज मिला या बुकर प्राइज मिला, लेकिन ये महत्व दर्शाता है कि अगर ट्रांसलेशन है एक इंडस्ट्री की तरह लिया जाए, एक प्रोफेशन की तरह लिया जाए, उसको एक आर्ट की तरह तो लिया ही जाए लेकिन स्किल की तरह भी लिया जाए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एकेडमिया भी कंट्रीब्यूट कर सकते। Teachers, as teachers, we can contribute not only in the development of such students who can translate, but at the same time we can provide them the career guidance also, and we can provide them some livelihood also, right? So that's the thing. These are some of the references, I mean the books that I, or even some articles that I used, even the website also I have mentioned. Thank you very much.